Yeah, hi, Morning, Agam. sir. Good morning. Good morning. How are you? Sir, good, fine. Yes. Yes. Tell me, Agam. What are the problems you are facing in your exam preparation, and what kind of Sir, I help you feel, need from my I, end? I, yeah, I feel demotivated in recording sessions. Means I cannot take consistently to join your session regularly. And uh, so one problem that you're facing is that you're feeling demotivated, right? Yes, And sir. Yes, sir. what was the second? You know, what do you want to ask? You know, you can't join the live session, is it? Yes, yes, sir. Why can't you join the live session? Because you're not feeling motivated to attend those lectures, is it? सर और ऐसा लगता है कि पीछे रह गया हूँ काफी. Okay, see that happens when you start comparing yourself with somebody else, right? जब आप अपने आप को किसी और से compare करोगे, तो फिर आपको लगेगा कि आप बहुत पीछे रह गए हो, right? See that when you are going for a CAT exam, there's a fixed syllabus that you have to cover. Now, whether you're doing it in the period of January to March, or you're doing it from March to June, or you're doing it from June to August, right? It does not matter, right? Somebody who have done the syllabus in January to March, and if you're doing it now, and if you try to compare yourself with that person, you obviously feel demotivated. And there's no sense comparing yourself with that person, first of all, right? आपको उस person से अपने आप को compare नहीं करना है, आपको एक plan बनाना है, right? You have to make a plan that if I want to go for a CAT, if I want to clear the CAT, what's the plan, what's the strategy to do that, right? And you have to work on that strategy, right? आपको वो strategy को implement करना है, right? You have to work for that strategy that you're making yourself to clear the CAT, right? अब अगर आप compare करोगे कि यार उसने geometry कर लिया, मैंने geometry नहीं किया, तो कोई sense Yes, नहीं sir. है, Yes, sir. right? Just imagine a candidate who is actually, going to get selected into top B school. Do you think that candidate will be thinking like this? क्या उसका एप्टीट्यूड, उसका उसका थॉट प्रोसेस, उसका थिंकिंग प्रोसेस इस तरह से होगा कि वो अपने आप को किसी और से कंपेयर करके डीमोटिवेट हो रहा है? अगर ऐसा बच्चा कोई है तो दैट मीन्स उसके अंदर, उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी ओवरऑल थिंकिंग में कहीं ना कहीं गलती है, राइट? इट्स नॉट गुड for your career, right? You stop comparing yourself with somebody else, right? What you do now is that just make a plan how to complete the syllabus along with the revision, fix a timeline, make a routine, follow that routine, right? Once you start following the routine, you will start feeling motivated, right? आप डीमोटिवेशन तब भी फील करते हो जब आप रूटीन को फॉलो नहीं करते हो। जैसे आप क्लासेस नहीं लगा रहे, आप बोल रहे हो कि मेरे को मोटिवेशन नहीं मिल रहा है क्लासेस लगाने का। आई मीन, अगर आपको कैट करना है, राइट, इफ यू वांट टू गो फॉर कैट, सी आई एम वेरी डायरेक्ट, राइट? जो बात सही है वो मैं मुंह पे बोल दूंगा आपको, ठीक है? जो बात ठीक है, मुझे आई विल नॉट बी थिंकिंग कि आपको कैसा लगेगा वो सुन के। आप बोल रहे हो कि मुझे कैट क्लियर करना है, देन यू आर थिंकिंग कि मेरे को क्लासेस में आने का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। आई मीन, व्हाट काइंड ऑफ व्हाट आर यू थिंकिंग? आपको कैट करना भी है और आपको Sir, क्लास आने का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। ये sir, लाइव सेशन तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा ना, आप आगे चल रहे हो और मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, तो रिकॉर्डेड में मतलब नहीं आ पा रहा है रेगुलरिटी. तो रेगुलरिटी लेके आओ, बिकॉज इफ यू वांट टू डू समथिंग, अगर कुछ करना है अगर लाइफ में, तो एक रूटीन बना के उसको फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बना के उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, राइट? बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। आप बोल रहे हो कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा रिकॉर्डेड लेक्चर्स को रेगुलर देखने का, राइट? मोटिवेशन लेके आओ ना यार। जस्ट डोंट फॉरगेट योर टारगेट कि आप कैट कर क्यों रहे हो, right? If you have committed yourself that yes, this is the exam that I want to clear, this is a commitment that you have made to yourself some time back, and now it's a time to work on that commitment, right? Just imagine, see that career growth is all about commitment. Career growth is all about commitment. If you want, if you want to grow in a career, in your career, right, you have to fulfill the commitments that you are making to reach to that level. अगर आपको करियर में किसी एक लेवल पे पहुंचना है, तो आपको कमिटमेंट्स उस करियर, उस लेवल पे पहुंचने के लिए जो जो डिमांड है, जो जिस टाइप जो जो वर्क की डिमांड है, राइट, आपको वो कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा। इफ यू नॉट डूइंग दैट, यू आर गोइंग टू फेल इन एवरीथिंग, राइट? अगर आप कमिटेड नहीं हो किसी चीज के लिए, वेदर इट्स योर इवन रिलेशनशिप, so that relationship will get failed. Similarly, right, if you are not committed for your career, you are definitely Yes, going to, yes. right?
सो अगर आपने एक कमिटमेंट अपने लिए किया है कि मेरे को कैट करना है आने वाले टाइम में, आई वांट टू सी माई सेल्फ इन अ टॉप बी स्कूल, you have to work. That's a simple answer, right? You have to make a routine, you have to follow that routine. When you follow the routine, the confidence will your confidence will automatically be up, right? आपका confidence automatically up होगा, आपको motivation मिलेगा आगे जाने के लिए, ठीक है? आप आगे starting से ही आप मोटिवेशन नहीं, ऐसे लेथार्जिक वे में आप स्टडी कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला, राइट? जैसे पहले का टाइम निकला वैसे ये 6 मंथ्स भी निकल जाएंगे और कैट ओवर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर कोई और आएगा, फिर से आपको कोई मोटिवेट कर रहा होगा। बट जब तक आप अपना कमिटमेंट खुद से पूरा नहीं करते हो, राइट, आप खुद को अपने आप को मोटिवेट नहीं करते हो, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट? 99.99% जो जो एफर्ट्स होती हैं वो स्टूडेंट्स की होती हैं। टीचर्स एंड मेंटर्स आर देयर जस्ट फॉर डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल, आई कैन नॉट मोटिवेट यू एवरी डे, क्योंकि अगर आपको एवरीडे मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, आप यू आर नॉट ए कैंडिडेट हु शुड बी गेटिंग सिलेक्टेड देन, राइट? यस सर, यस सर। मैं आपको सिर्फ एक टाइम पे बता सकता हूँ कि आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो, राइट? आपको सही ट्रैक पे आना है एंड रेगुलरली अपना सिलेबस खत्म करना है, टाइमलाइन फिक्स करनी है सिलेबस को फिनिश करने की, एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, राइट? एंड मॉक टेस्ट देने हैं, एनालिसिस करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है, फाइनली जाके पेपर दे के आना है हाई कॉन्फिडेंस मोड के अंदर। अब पढ़ने में कॉन्फिडेंस अगर डाउन रखोगे तो पेपर में कॉन्फिडेंस कैसे आ पाएगा? पेपर में कॉन्फिडेंस, सी, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स दैट in CAT exam it's not 3 subject, there are 4 subject, 4 subject is a confidence, and it's not that कि मैं आपको बोल दूं कि यार कॉन्फिडेंस है पेपर दे के आना और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? हजारों बच्चे हैं मेरे पास, फिर तो मैं सबको बोलता हूँ एग्जाम से एक दिन पहले सबको फोन कर दूंगा यार कॉन्फिडेंस है पेपर दे के आना, और वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों में? नहीं आएगा, राइट? कॉन्फिडेंस का, प्रैक्टिस। राइट, मेंटली कॉन्फिडेंट फील करना एक दिन में नहीं हो सकता है। वो तब होगा जब आप रूटीन फॉलो करोगे, वो तब होगा जब आप मॉक पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेके आओगे, वो तब होगा जब आप होमवर्क अपना ढंग से करोगे, राइट? अगर आप वो चीजें नहीं कर रहे हो तो आप फिर यू कैन नॉट गेट सिलेक्टेड, राइट? आपको अपना कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा, या फिर आप ये कमिटमेंट चेंज कर दो, राइट? कि मुझे नहीं करना है कैट, मुझे नहीं जाना है टॉप बी स्कूल में, राइट? मुझे नहीं करनी है टॉप कॉर्पोरेट जॉब्स, या तो ये कमिटमेंट चेंज करो अगर आपको वो कमिटमेंट अपनी लाइफ में रखना है, राइट? आई एम बीइंग वेरी डायरेक्ट बट बिकॉज दैट्स अ हार्श ट्रूथ, राइट? मैं मतलब आपको खुश करने के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं बोलना चाह रहा हूँ, जो ट्रूथ है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट, राइट? दैट जस्ट फॉलो द कमिटमेंट दैट यू हैव मेड टू योरसेल्फ to get into a top B school, to clear the CAT with good percentile, right? वो commitment के लिए that commitment requires a certain amount of work, right? And you have to put that work. अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप definitely fail होने वाले हो. That's a future. That's your future, right? If you want to change your future, right? Start working. When you start working, make a routine. When you start following the routine, you automatically feel confident. Okay? और बताओ। सर सर जैसे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके 16 सेशंस अटेंड किए हैं उसमें नंबर सिस्टम में, तो लास्ट में आते आते पता नहीं बैक फ्लो या मतलब भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट्स लास्ट में आके। See that for that you need to require the practice of the questions, right? And revision on regular basis, right? So what you do for that is Agam, that आपको क्या करना चाहिए? Suppose you are doing a number system at a point of time, right? So you need to select some questions that every week. For example, of a number system, if you have done the number system, right? Let's say, so in next week, right? You need to have some questions of 7, 8 or 10 questions to do those from that chapter, so that आपका वो revision होता रहे, या फिर ये चेक होता रहे कि जो concepts आपने नंबर सिस्टम में पढ़े उनको आपने अभी तक रिटेन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। ओके, सो नंबर सिस्टम कर लिया, नेक्स्ट आप अरिथमेटिक स्टार्ट कर रहे हो, मेक वन डे, एक फिक्स डे को एक फिक्स कर दो जिसमें आप प्रीवियस सभी टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन करोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट रिटेन होता रहेगा। बट अदरवाइज जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरे स्टूडेंट्स, आई गेस आप भी मेरे सेशंस अटेंड कर रहे हो, तो आई एम टेकिंग अ क्विज एवरी डे एट 11 AM ऑन अनअकैडमी ऐप, ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, राइट? तो वो क्विज में क्या होता है कि मैं सभी टॉपिक के 3-3, 4-4 क्वेश्चंस डालता हूँ, तो बच्चों को पता लगता है कि यार मेरा परसेंटेज जो मैंने पहले 2 महीने पहले किया था, क्या वो अभी मेरे को उसके कॉन्सेप्ट्स मैंने रिटेन किए हुए हैं, क्या मैं उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ जितना कि मैंने 3 महीने पहले किया था? तो वो क्विज रेगुलर बेसिस पे होता है और डेली बेसिस पे होता है। तो 2-3 क्वेश्चन अगर आप क्विज के डेली बेसिस पे प्रीवियस टॉपिक से करोगे तो ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट्स भी रिटेन रहेंगे। या तो आप क्विज रेगुलर अटेंड करना स्टार्ट कर दो, या फिर अपने एंड से आप खुद से हर वीक में एक दिन ऐसा रखो जिसमें आप प्रीवियस सभी टॉपिक के 5-5 क्वेश्चंस कर लोगे।
right? और बताओ सर राइट नाउ अप्रोच कौन सी यूज करें इस टाइम एट दिस पॉइंट? कि सिलेबस को कैसे खत्म करना है एंड ऑल दैट, ये सब यस सर। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब पूछ रहे हो? सी अब what are the topics that you have done till now? कौन कौन से टॉपिक्स आपने किए? just make a till list. now number system only 1 month I have spent on it. Okay. See that number system के लिए आप सैटरडे संडे वाला क्लास लगाओ, बस सिर्फ 2 दिन वीक में नंबर सिस्टम के लिए सफिशिएंट है, बिकॉज वो टॉपिक फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बट राइट नाउ वी डोंट हैव अ टाइम कि आप 1 मंथ नंबर सिस्टम पे लगाओ, राइट? और नंबर सिस्टम का अगर आप कैट में इंपॉर्टेंस देखोगे तो आपके पास नो 2 या 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, बट नंबर सिस्टम ऐसा एक फाउंडेशन आपके लिए क्रिएट करता है जिसके बेसिस पे आप पूरा क्वांट समझते हो, है ना? तो जरूरी तो है वो टॉपिक, उसके कुछ टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड एवरीवेयर इन क्वांट, राइट? So I have a running course on number system on Saturday and Sunday. You just go for number system on Saturday and Sunday, just 2 classes in a day. And then you start with arithmetic. Arithmetic is the first topic that you should be doing along with the number system, because reason is arithmetic give you at least 14-15 questions. It will give you 40-50% of your paper. That's the only section which can help you, in achieving 80 or 90% of your target score of quant section. Yes. Start with arithmetic. Make a timeline. अभी टाइम बहुत कम है, right? थोड़ा सा footing इस पे आपको काम करना पड़ेगा, right? Because you already have spent a lot of time in doing things जिसमें आपने अपना time waste किया. So fix a timeline कि मेरे को next 20 days के अंदर पूरा arithmetic complete करना है. And when you are watching the recording, just don't watch it like a movie. Don't just sit ऐसे नहीं कि बेड पे लेट जाओ, लैपटॉप चला लो और वीडियोस देखते रहो. नहीं, उससे काम नहीं. Just sit on the table, pick your pen and paper, राइट? जो और उसको 2 टाइम्स स्पीड पे चलाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो वो रिटेन नहीं होगा. जब तक आप पेन पेपर उठा के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन इट, राइट? सो व्हाट यू डू इज क्वेश्चन थ्योरी पहले आप ध्यान से सुनो, उसको समझो, राइट? उसको लिख सकते हो तो पेन पेपर से लिखो भी साथ साथ. एंड व्हेन आई एम asking you to solve a question in the class, right? You need to give that time. आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से पेन एंड पेपर से. ऐसे नहीं कि उसका सोल्यूशन देखना है और आगे बढ़ना है. नहीं, जब तक आप पेन पेपर खुद पिक करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई नहीं करोगे, यू विल नेवर गेट टू नो कि आपकी गलती कहाँ है, सोल्यूशन में आप कहाँ गलती कर रहे थे, व्हाई यू कुड नॉट थिंक इट, राइट? आप खुद ये सोल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आपने क्यों नहीं सोचा. वो पॉइंट्स आपको पकड़ने पड़ेंगे, राइट? वो बहुत मेहनत है उसमें, एवरेज में भी, परसेंटेज, सभी टॉपिक्स में करने पड़ेंगे. नेक्स्ट 20 days अगम आई वांट just concentrate on arithmetic, finish your arithmetic, and then give me a report after 20 days कि हाँ मैंने arithmetic कर लिया. Then I'll tell you कि next कौन सा अपने को topic target करना चाहिए, right? And keep on giving the quiz from the topics that you have already covered, right? Thank you sir. All right. Anything else that you want? सर बस यही था. और सर आपसे एक क्वेरी थी, आपने टाइम में काम किया है? नहीं, I have not worked in time. मैं नहीं काम किया वहाँ पे. क्या आपको कुछ पूछ? Okay, all right. Thank you sir. Nice to talk you. Thank you. Wish you all the best. And keep yourself motivated, right? Yeah, I feel motivated now. All right, Agam. See you after 1 month. Huh? I'll do a one more mentorship for you after 20 days. Just give me a report after 20 days. Follow the routine. Make a routine and follow it. When you follow the routine, you'll feel motivated automatically. Okay? On Telegram, sir, I will report, or on WhatsApp? Anywhere. Wherever you want to send me a message, you can send me. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.